اس وقت پوری دنیا کے اندر حقوق نسواں کی بات کی جا رہی ہے، اور دنیا کا وہ طبقہ جو عورتوں کو بازار کی زینت اور اپنے مال فروش کے لیے ذریعہ بنایا ہے، دنیا کے وہ لوگ بھی عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور عورتوں کی عزت و سربلندی کے لیے نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں۔ لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ کہوں گا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیشتر اگر کسی نے حقوق نسواں کے سلسلے میں آواز اٹھائی ہو، یا پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے وہ اگر کسی نے عطا کیا ہو تو مجھے ثبوت پیش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوسائٹی کے ہر مظلوم کا سہارا بن کر جلوہ گر ہوئے، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا سب سے پہلے فائدہ اگر کسی نے اٹھایا اور کسی کو میسر ہوا تو وہ کوئی مرد نہ تھا بلکہ خاتون ہی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سب سے پہلے فائدہ نصیب ہوا۔ کون نہیں جانتا، ابو لہب کی لونڈی سویبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جب ابو لہب کے پاس جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اطلاع دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ابو لہب نے سنتے ہی سویبہ کو آزاد کر دیا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ اے سویبہ، میرے آنے سے پہلے تو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اب میری ولادت ہو چکی ہے، میں ہر عورت کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کراؤں گا۔ اے خواتین اسلام، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں اور موجودہ دور کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ دنیا پھر سے عورت کو اسی جگہ پر لے جانا چاہتی ہے جو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کا دور تھا۔ آپ دیکھیں، بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں، عریانیت بڑھ رہی ہے، فحاشی بڑھ رہی ہے، آوارگی بڑھ رہی ہے، اور عورت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام نے تمہیں چار دیواری میں قید کر رکھا ہے، تم بھی اپنی آواز بلند کرو اور اپنے حقوق کی بات کرو، اور مردوں کے شانہ بشانہ چل کر تم بھی اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرو۔ لیکن دنیا کے وہ لوگ جو اس قسم کا نعرہ بلند کرتے ہیں، انہی کے گھروں کا جائزہ لیا جائے اور انہی کے معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات کہتے ہوئے مجھے بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے والی عورتیں دنیا میں جتنی پرسکون نظر آتی ہیں، ایسی پرسکون کسی اور جگہ پر وہ دکھائی نہیں دیتی۔ آج بھی ماں کے قدموں کو چومنا ایک بچہ اپنی ذمہ داری اس لیے تصور کرتا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، اور آج بھی بہن کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کے لیے بھائی بے چین ہوتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بہن کے مقام و مرتبے کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا ہے، اور آج بھی اپنی بیٹی کی ولادت پر خوشی اگر کوئی باپ مناتا نظر آتا ہے تو یہ بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، مغربی نعروں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی طرف سے پھیلائی جانے والی بے حیائیوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ذریعے فحاشی اور عریانیت کو جو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس مذہب اسلام نے عورت کو وقار دیا، عورت کو سربلندی عطا فرمائی، عورت کو عزت کا تاج عطا کیا، آج ضرورت اس امر کی ہے اس اسلام کو فالو کیا جائے، اس اسلام کے قانون کو اپنایا جائے، اور اس اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا جائے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کس طریقے سے عورتوں کی عزت اور سربلندی کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو کس طریقے سے بلند فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو کتنا بلند و بالا مقام عطا کیا، اور جس اسلام نے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسیلے سے
जिस इस्लाम के जरिए अल्लाह ने इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाई, आप अगर तारीख या औराक उलट करके देखें तो ऐसी हजार खवातीन मिलेंगी जिन्होंने इस्लाम के सिलसिले में तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया और अपने वजूद को कानून इस्लाम के खिलाफ गुजारने से हमेशा के लिए इज्तनाब किया। आइए मैं आपको बताता हूं, अगर आज के दौर में कोई मुस्लिम मर्द बेचैन है, अगर आज के दौर में कोई मुस्लिम औरत बेचैन है, अगर खौफ व हिरास के शिकार हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितना इस्लाम से ताल्लुक कमजोर होता जाएगा, खौफ उतना ही दामनगीर होता जाएगा। जितना पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतें दूर होती जाएंगी, खशियत इतनी बढ़ती जाएगी, खौफ दुनिया का इतना बढ़ता चला जाएगा, अदम तहफ्फुज की वो शिकार होती जाएंगी, बेकरारी उनके दरवाजों पर दस्तक देती नजर आएगी। लेकिन जितना ही वो इस्लाम से करीब रहेंगी और इस्लाम पाबंद बनकर जिंदगी गुजारेंगी, उनके दिल से दुनिया का खौफ भी निकल जाएगा, अदम तहफ्फुज का एहसास भी निकल जाएगा, बल्कि उनकी जिंदगी एक पुरसुकून और इत्मीनान बख्श गुजरती दिखाई देगी। इसलिए कि आप देखें, कुरान मुकद्दस ने ज़ाब्ता दिया क़यामत तक के लिए। रब इरशाद फरमाता है, कुल नहबितु मिनहा जमीआ, हमने उनसे कहा उतर जाओ, सब जमीन पर उतर जाओ। अल्लाहु अकबर। कुल नहबितु मिनहा जमीआ, ये कहने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी पुश्त अनवर के अंदर उनकी जितनी ज़ुर्रियत थी सबको जमीन पर उतरने का हुक्म दे दिया गया। और उसके बाद फरमाया गया, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, बस अगर तुम्हारे पास मेरी हिदायत आ जाए, फमन तबिआ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे उसे न कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। अल्लाह अकबर। इस्लाम ये आज का दीन नहीं है, इस्लाम ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होने वाला दीन नहीं है, बल्कि इस्लाम वो आफाकी दीन है। जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तब से लेकर इंसानों की जिंदगी गुजारने के लिए इंसानों को जो कानून अता किया गया वो इस्लाम की शक्ल में है। और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली इस किताब के अंदर आये करीमा वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही है, जो ये चाहता हो कि वो बेखौफ जिंदगी गुजारे, जो ये चाहता हो वो गम से बेनियाज होकर जिंदगी गुजारे, तो कुरान ने कहा फमन तबिआ हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की। पता ये चला जो इस्लाम को फॉलो करेगा, जो इस्लाम की पैरवी करेगा, जो इस्लाम के कानून को इख्तियार करेगा, जो इस्लाम के दस्तूर पर जिंदगी गुजारेगा, मेरा करीम उसके दिल से खौफ निकाल देगा, उसे बेगम कर देगा, उसके दिल से हिरास निकाल देगा। और तारीख बताती है कि जिसने भी तहफ्फुज़ शरीयत और तहफ्फुज़ इस्लाम के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी और पैरवी इस्लाम में जिंदगी गुजारी, उनका आलम यह है कि 22,000 के लश्कर के सामने भी वो बेखौफ नजर आते हैं, बेबाक नजर आते हैं, उनकी पेशानी पर शिकन नजर नहीं आती। ऐ खवातीन इस्लाम, जरा आप देखें और तारीख का मुताला करें कि औरतों ने रसूल आजम के एहसान का कितना ख्याल किया, इस्लाम के एहसान का कितना ख्याल किया। इसलिए कि औरतें जानती थीं कि उनकी विलादत के सरकार की विलादत से पेशतर उनकी विलादत को एक ऐब समझा जाता, उनकी पैदाइश को एक जो है वो मनहूस करार दिया जाता, और उनकी पैदाइश के बाद उनके लिए जीना मुश्किल हो जाया करता, जिंदा जमीन के अंदर बच्चियों को दफन किया जाता। मैंने कहा था कनाडा की सरजमीन पर जब मुझसे कहा गया था कि पैगंबर रहमत क्यों आए, तो मैंने जवाब में कहा था कि पैगंबर रहमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तशरीफ लाए। इसलिए कि दहशतगर्दी का मामला यह है कि आज के दुनिया के दहशतगर्द और आज के टेररिस्ट अपने बच्चों को नहीं मारते, और आज के दौर का टेररिस्ट अगर देखा जाए तो लिमिटेड टेररिस्ट मिलेंगे। आज चंद टेररिस्ट होते हैं वो किसी और के घर पे बम गिराते हैं, वो सुसाइड बम्बर बन करके बेशुमार बेगुनाहों को कत्ल कर देते हैं। आज के दहशतगर्दों का हाल यह है कि वो दूसरों के मुल्क को तबाह करते हैं। आज के दहशतगर्दों का हाल यह है वो दूसरों की जानों को हलाक करते हैं। आज के दहशतगर्दों का हाल यह है कि दूसरे के अमलाक को तबाह करते हैं। आज के दहशतगर्दों का हाल यह है कि दूसरों की आबरू पर हाथ डालते हैं। लेकिन मेरे आका जब पैदा हुए तो हर घर में दहशतगर्द नजर आ रहा था, इसलिए कि उस दौर के दहशतगर्दों से बढ़ करके दहशतगर्द कौन हो सकता है जो अपने ही हाथों से अपनी बच्ची को जमीन में दफन करता हो, उससे बड़ा दहशतगर्द कौन होगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपने उस दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिश की और दुनिया ने देखा कि जो बच्ची की विलादत पर अफसोस करते थे, मुस्तफा ने ऐसा निजाम कायम फरमाया कि अब जो बच्ची पैदा होती थी तो बाप मुस्कुराता था और खुशियों में मचलता था कि अल्लाह की रहमत मेरे घर में आ चुकी है। तो हुजूर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तशरीफ लाए। औरतें तसव्वुरात की दुनिया के अंदर जरा सोचें कि अगर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाते तो आज किसी घर में बच्ची की विलादत को अच्छी नजर से न देखा जाता।
बच्ची की पैदाइश को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने एक सहाबी के घर में इस तरीके से नूर की किरण देखी, बल्कि नूर की लकीर देखी कि उनके घर से नूर निकल रहा है जो आसमान तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार इसकी क्या वजह होगी? मेरे आका ने फरमाया जाओ, जाकर देखो, हो सकता है उसके घर में किसी बच्ची की विलादत हुई हो। आप अंदाजा लगाएं पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ऊंचा मर्तबा और मकाम औरतों के हवाले से, बच्चियों के हवाले से सहाबा और इंसानों के दिलों के अंदर दाखिल फरमा दिया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, ऐ खवातीन इस्लाम, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मुस्लिमा औरत मां बन जाए तो उसके कदमों में जन्नत रख दी। अल्लाह अकबर। और हैरत होती है, आज जो है नारा लगाया जाता है कि औरत जुल्म की शिकार हो रही है, औरत ज्यादती की शिकार हो रही है। मैं कहता हूं औरत इस्लाम के दामन में जितनी महफूज है कहीं और इतनी महफूज दिखाई नहीं देगी। हां, अलबत्ता कुछ जालिम ऐसे जरूर मिलेंगे और ये कहां नहीं होते, लेकिन अक्सरियत का अगर जायजा लिया जाए, अगर अक्सरियत की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो हर घर के अंदर औरत को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इज्जत अता फरमाई है और मकाम अता फरमाया है। आइए मैं आपको बताऊं, औरतों में जब तक यह एहसास था, औरतों में जब तक कि उनका ज़मीर जिंदा था और औरतों ने जब ये महसूस कर रखा था कि हमें वकार मिला है तो इस्लाम की बुनियाद पर, हमें इज्जत मिली है तो इस्लाम की बुनियाद पर, तो नतीजा ये होता कि उनके वजूद से इस्लामी अक़दार छलकते दिखाई देते। वो इस्लाम की तरफ अपने बच्चों की रहनुमाई करते, उनके बच्चे आगोश इस्लाम के अंदर और इस्लाम की माओं के अंदर, उनके गोद के अंदर परवरिश पाते दिखाई देते। आइए मैं आपको बताता हूं, मगरिबी दुनिया का जायजा लो। हैदराबाद की सरजमीन पर बसने वाली बहुत सारी औरतें जानती हैं और बहुत सारी औरतों का रिश्ता ताल्लुक जो है वो बाहर की दुनिया से होगा। बहुत सारों के रिश्तेदार मगरिबी दुनिया में रहते हैं, इसलिए वो अगर तहकीक करना चाहें तो तहकीक भी कर सकती हैं। मगरिबी दुनिया में जीने वाले गैर मुस्लिमों की जिंदगी का जायजा लीजिए तो आपको हैरत होगी। मां बैठी है, बाप बैठा है और मां बाप के सामने मगरिबी दुनिया के अंदर एक बच्ची अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर में दाखिल होती है। बाप की मजाल नहीं कि अपनी बेटी से पूछ सके कि ये कौन है, मां की मजाल नहीं कि अपनी बेटी से पूछ सके ये कौन है। लेकिन अल्लाह अकबर, कलेमा पढ़ने वाली बच्चियों का आलम यह है कि आज भी हया उनके दामन में है, आज भी हया उनकी जिंदगी से छलकती नजर आती है। मैं पूछना चाहता हूं, कुड़ कुड़ के वो मां बाप अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो मां बाप जिनका ताल्लुक इस्लाम से मजबूत है, उनकी बच्चियों का मामला यह है कि वो इस्लाम में परवरिश पाती हैं और हया की पैकर बनकर अपने मां बाप की आंखों को ठंडक पहुंचाती दिखाई देती हैं। आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, औरतों में जब यह एहसास था कि इस्लाम ने हमें इज्जत अता की है, और मैं औरतों से गुजारिश करता हूं और इस शहर की बसने वाली खवातीन पढ़ी लिखी हैं, उर्दू से ताल्लुक है, दीनी किताबों से ताल्लुक है, कुरान और अहादीस का मुताला करें, सीरत की किताबों का मुताला करें तो उन्हें पता चलेगा कि इस्लाम ने जो हुकूक और मर्तबा खवातीन को दिया है कहीं और इस तरीके से मरातिब दिखाई नहीं देते। आज अगर हमारी औरतों के घरों से और आज अगर हमारी कौम की बच्चियों के घरों से दाइयान दीन जन्म नहीं लेते तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी औरतों ने इस्लाम से अपने रिश्ते को कमजोर कर दिया और वो एहसान भूल चुकी इस्लाम का कि इस्लाम ही की वजह से उन्हें इज्जत और सरबुलंदी मिली है, उन्हें मकाम और मर्तबा मिला है, उन्हें इज्जत और सरबुलंदी नसीब हुई है। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत उम्मे सुलैम का वाकया कौन नहीं जानता। अल्लाह अकबर। हजरत अबू तलहा चाहते थे उम्मे सुलैम से निकाह करें, लेकिन अबू तलहा भी आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखे थे। दिल में ख्याल था उम्मे सुलैम से रिश्ता करने के सिलसिले में उम्मे सुलैम के यहां पैगाम भेजते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जानेसार सहाबिया बरजस्ता कहती हैं, अबू तलहा तुमने रिश्ता तो भेजा है लेकिन माबूदाने बातिल की तुम परस्तिश करते हो और मैं मुसलमान हूं, मेरा रिश्ता तुमसे कैसे मुमकिन है। अगर तुम आगोश इस्लाम में कदम रख लो तो यह रिश्ता मेरा तुम्हारे साथ मंजूर होगा और बल्कि यही मेहर होगी। अल्लाह अकबर। अबू तलहा ने कहा थोड़ी देर
देर सोचने का मौका दो। लेकिन गए, गुस्ल किया और आए और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद वो आगोशे इस्लाम में कदम रख चुके। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया ने अपने किरदार से इस्लाम फैलाया, इसलिए कि इस्लाम रहमत का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम सुकून का मजहब है। दुनिया का कानून सुकून नहीं देता, खुदा का कानून सुकून देता है। मुस्तफा प्यारे की शरीयत सुकून देती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया का कौन बाप ऐसा होगा जो अपनी बच्ची से मोहब्बत न करता हो? दुनिया की कौन सी औरत ऐसी होगी जो अपने शौहर से मोहब्बत न करती हो? दुनिया की कौन सी बच्ची ऐसी होगी जो अपने बाप से मोहब्बत न करती हो? लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह माजरा क्या है? करबला की तपती हुई रेत पर मैं जब अगर वहां के मंजर के हवाले से गौर करता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर, 22,000 का लश्कर जर्रार सामने है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनकी पूरी फैमिली है, बच्चियां भी हैं, इमाम हुसैन की ज़ौजा भी हैं, बेटे भी हैं, भतीजे भी हैं, सब के सब बहन भी हैं, सब के सब मौजूद हैं। आज की दुनिया के थोड़े से अहवाल का जायजा लो और थोड़ा सा करबला के हवाले से गौर करो। अल्लाह अकबर, इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहां की आखिरी शब जो करबला की होती है, शब आशूर, इमाम हुसैन अपने घर वालों से खिताब फरमाते हैं, देखो इनकी दुश्मनी मुझसे है, इनकी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है। अगर तुम सब जाना चाहो तो जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई तुम्हारे लिए मुआखिजा नहीं है, कोई सवाल नहीं, तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। सबने बैक आवाज यही कहा, हम मुसीबत के इस मौके पर आपको तन्हा छोड़कर नहीं जाएंगे, जिएंगे भी आपके साथ और मरेंगे भी आपके साथ। इस एक जुमले को और इस एक जो है माहौल को और मामले को सामने रखते हुए मैं आज की बहनों से सवाल पूछता हूं। आज की सिचुएशन बदलती नजर आ रही है, आज के हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जहां शौहर के मामलात थोड़े से कमजोर हुए तो अगर बड़े बाप की बेटी है, बड़े घराने की बेटी है, तो अब शौहर के यहां रहना अच्छा नहीं लगता, अब मैके जाने का वो ख्याल करती हैं। याद रखें, वफादार बीवी वो होती है जो शौहर के सुख में भी शरीक हो और शौहर के दुख में भी शरीक हुआ करे। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने उस मौके पर कहा था, जाना चाहो तो जा सकती हो और तुम सब जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन कोई वहां से हटने को तैयार नहीं, सब साथ देने को तैयार हैं। रात कट जाती है, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, खास तौर पर आज मेरी बहनों के जमीन को झिंझोड़ना चाहूंगा और उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आज अगर बुराइयां फैल रही हैं, बदकिरदारियां फैल रही हैं, आवारगी फैल रही है, तो इसके अंदर औरतों का कितना कलीदी रोल है। लेकिन हम इमाम हुसैन की याद बनाकर उनके पैगाम और उनके खिदमत इस्लाम को फरामोश किए बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करबला की तपती हुई रेत के अंदर वहां की जो सिचुएशन थी, 22,000 का लश्कर मौजूद था, ताजा दम लश्कर मौजूद था। इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है, उनकी अहलिया तशरीफ फरमा है, उनकी बेटी तशरीफ फरमा है, उनकी बहन तशरीफ फरमा है, बेटे तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर, तारीख की किसी किताब के अंदर मुझे आज तक यह जुमला नहीं मिला कि बीवी ने इमाम हुसैन से यह कहा हो, मेरे सरताज अगर आप शहीद हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, यजीद के हाथ में हाथ दे दो ताकि हम तो बच जाएं और हमारा सुहाग तो सलामत रहे। एक जुमला तारीख की किताब में। बेटी ये नहीं कह रही अब्बा जान हम यतीम हो जाएंगे, आप यजीद की बैत कबूल कर लो। बहन ये नहीं कह रही भाई यजीद की बैत कबूल कर लो, घर पूरा सलामत रहेगा। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, आज छोटी सी मुसीबत के मौके पर अगर तंगदस्ती का शिकार है कोई, तो बीवी कहती है चोरी करो लेकिन मुझे पैसे ला कर दो, डकैती करो लेकिन मुझे जेवर चाहिए। दुनिया की दूसरी औरतें ऐश मौज के अंदर जिंदगी गुजारती हैं, मैं किस तरीके से अपने आरज़ुओं का गला घोंटूं, मुझे यह चीज चाहिए, तुम कैसे भी करके लाओ। नहीं, आज की औरत अपने शौहर से यह बात तो कहती दिखाई देती है, लेकिन करबला की तपती हुई रेत पर जान का मसला है, लेकिन न बीवी कह रही है, न बेटी कह रही है, न बहन कह रही है कि यजीद के साथ कंप्रोमाइज कर लो। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, ये वजह क्या है और सबब क्या है? तो जवाब मिलेगा। हर घर की बच्ची यही कहती हुई नजर आएगी कि एक न एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है, शहादत तो मंजूर है लेकिन इस्लाम की नहीं, इंसान की शहादत मंजूर है। इस्लाम जिंदा रहेगा तो हर इंसान की जिंदगी कामयाब और कामरान नजर आएगी। लेकिन आज खवातीन की शिद्दत की वजह से
बहुत सारे मर्द रात को घरों में आने से गुरेज करते हैं, ताखीर से घर पर पहुंचते हैं। गुर्बत और इफलास की वजह से बीवियों के ताने सुनने को मिलते हैं। और आज की बीवियां अपने शौहर को यहां तक कहती हैं कि चोरी करो लेकिन ये ला करके दो। लेकिन तारीख बताती है मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली खवातीन जब गुर्बत की चक्की में पीसी जाती और उनके शौहर जिनकी आमदनी बहुत कम हुआ करती और कभी कभी तो फक्र फाके में जिंदगी गुजारी जाती, ऐसे मौके पर शौहर के दिलो दिमाग के अंदर कहीं से फुतूर भी अगर आ जाए तो उस दौर की औरतें थी जो अपने शौहर को इस्लाम पर साबित कदम रखती थी। जानते हैं आप, शौहर कमाने के लिए निकलता तो बीवियां कहती थी खबरदार हराम की कमाई लेकर के मत आना, इसलिए कि हम पेट की आग तो बर्दाश्त कर सकती हैं, जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उनके जुमले थे, ये उनका इस्तिकामत फी दीन का जज्बा था, जिसकी वजह से इस्लाम महफूज भी था और जिसकी वजह से इस्लाम फरोग भी पा रहा था। लेकिन आज सोच बदल गई, आज अफकार और नजरियात बदल गए। आज खवातीन की सोच के बदल जाने की वजह से माहौल बिगड़ता जा रहा है। आइए अपन बच्चियों के हवाले से मैं बात करूं, जो बच्चियां खिलाफ इस्लाम जीने को ये समझती हैं कि इस तरह से जिएंगी तो रिश्ते आएंगे, इतना मेकअप करेंगी तो रिश्ते आएंगे, इस तरीके से बेहयाई में जिंदगी गुजारेंगी तो हमारी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। मैं अपनी बहनों और बच्चियों से गुजारिश करूंगा, ऐ मेरी कौम की बच्चियों और बेटियों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी जिंदगी इस तरह से पुरसुकून नहीं गुजर सकती। आज भी जमाने को तलाश है, आज का सरमाएदार भी अगर अपनी बहू तलाश करता है तो आज के दौर में भी यही सोचता है मेरी बहू अल्लाह की फरमाबरदार हो, रसूल की इताअत गुजार हो, खुद भले कितना ही जालिम क्यों ना हो, लेकिन वो चाहता है कि बीवी दीन की दाई हो और दीन पर अमल करने वाली हो। वजह क्या है कि वो जानता है आजाद लड़की होगी तो खुद भी आजाद रहेगी, नस्लों को भी आजाद रखेगी, घर के माहौल को भी बिगाड़ के रख देगी। इसलिए अब फिर से दुनिया उस तरफ जा रही है। मैं आपको बताऊं, एक तकरीब में मैं हाजिर हुआ मेरी बड़ी बेटी के घर पर, अल्लाह अकबर, रिश्ते की बच्चियां जमा थी। एक बच्ची थी जिसकी उम्र बहुत कम थी, बहुत कम तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी ठीक ठाक उम्र थी। लेकिन मैं देख रहा था सारी बच्चियों में वो बच्ची मुमताज नजर आ रही थी, इसलिए कि सिंपल कपड़े थे, सर पे दुपट्टा था, बड़े अदब और सलीके से वो सारी चीजों को उठा रही थी। मैंने अपनी बच्ची से पूछा बेटी ये किसकी लड़की है? उसने बताई फलां साहब की लड़की है। मैंने कहा बड़ी प्यारी लगती है और बड़ी दीनदार और बड़ी साफ सुथरी और सलीका मंद लगती है। उसके बाद मैंने मेरी बेटी से कहा मेरी बच्ची देखो, इसने मेकअप तो नहीं किया था, इसने बहुत टिप टॉप होकर तो नहीं आई थी, लेकिन मुस्तफा के फरमान पर अमल करने से उसकी इज्जत भी हमारी आंखों के अंदर, निगाहों के अंदर बैठ गई। इसलिए कि आज अगर सलीका सिखाया जाए, आज अगर ये सारी चीजें सिखाई जाएं तो इसकी वजह से इज्जत बन जाती है, वकार बन जाता है। लेकिन हां, अब ऐसा भी मामला बनता जा रहा है कि बहुत सारी खवातीन इस तरीके से भी आजादी का ख्याल करती हैं कि बुर्का पहनी होती हैं, मिजाज दूसरा होता है, लिबास इस्लामी होता है, सोच दूसरी होती है। तो सबसे पहले अपनी सोच को पाकीज़ा करो, अपनी फिक्र को इस्लामी करो और उसके साथ साथ अपने वजूद को भी इस्लामी करो। ऐ खवातीन इस्लाम, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबियात से जब बैत लेते तो उनसे बैत के वक्त ये इकरार लिया करते थे कि ज़िना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, कत्ल गारतगिरी नहीं करेंगी। इन सारी चीजों के हवाले से उनसे इकरार लिया जाता था। ऐ खवातीन इस्लाम, आज जरूरत इस अम्र की है कि बेहयाई के माहौल से बचा जाए, बदकिरदारी के माहौल से बचा जाए। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करूं, आप मुझे बताएं। मेरी बहुत सारी बच्चियां यहां पर बैठी होंगी, एक बार कभी ऐसा भी होता है कि उनकी कोई सहेली होती है, वो सहेली से बड़ी क्लोज होती हैं और अपने बहुत सारी अपनी बातें अपनी सहेली से शेयर करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर रिश्ते में कोई उन्हें बहुत पसंद हो तो उसका तस्करा भी कर देती हैं। और अल्लाह रहमो करम फरमाए व्हाट्सएप और फेसबुक और चैटिंग के इस दौर के अंदर कि कभी कभी चैटिंग में और फेसबुक में किसी से दोस्ती हो गई तो उसके अंदर भी गिरफ्तार होकर के उसकी वजह से उसके अंदर परेशान हो जाती है और एक दूसरे के हवाले से मिजाज को जो है और अपनी सोच को मुंतकिल करती चली जाती हैं। अल्लाह अकबर। अब आप देखें, अपनी सहेली जिसे आपने समझा था, जो आपकी क्लासमेट है, जो आपसे बहुत क्लोज है, आप
बापर्दा हैं, आप बाहया हैं, लेकिन आपने उसके साथ शेयर किया फलां लड़का मुझे देख रहा है, फलां मुझे मैसेज कर रहा है, फलां मेरा रिश्तेदार मुझे चाह रहा है, ये बातें आपने उसके साथ शेयर कर ली। अब आप जानते हैं एक दिन आपकी सहेली घर पहुंची तो उस सहेली की मां ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मेरा ख्याल है कि तुम्हारे भाई से तुम्हारी सहेली के रिश्ता कर दिया जाए, तुम्हारे भाई का रिश्ता तुम्हारी जो वो क्लोज फ्रेंड जो है उसके साथ तय कर दिया जाए। अब वही सहेली सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी और अपनी मां से कहेगी, नहीं मां अपने भाई का रिश्ता उसके साथ न करना, इसलिए कि फलां लड़का उसे देखता है, फलां लड़का उससे चैटिंग करता है, फलां लड़का उसको उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। अब आपने जिस सहेली को सहेली समझकर जिससे आपने राज शेयर किया वही आपकी दुश्मन बन गई। इसी को कुरान ने, ये दुनिया की दुश्मनी है, इसी को कुरान ने आखिरत के हवाले से बताया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन जिगरी दोस्त बाज बाज के दुश्मन बन जाएंगे मगर मुत्तकीन। पता यह चला कि सहेली आपकी बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो दुश्मन बन जाएंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, इस सिलसिले में जहन में रखें, अपने जज्बात को काबू में रखें और कभी भी किसी गैर मर्द के साथ, गैर लड़के के साथ आपकी कोई आशनाई भी ना हो, न स्टेटिंग हो, न उसके साथ मैसेज पर कांटेक्ट हो, इसलिए कि आप उसको किसी के साथ शेयर करेंगी तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। और साथ ही साथ आज ये नई सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर चल पड़ी है कि रिश्ता तय हो जाता है तो मां बाप छूट दे देते हैं कि बेटी तुम फला अपने मंगेतर से, फियांसी से बातचीत कर सकती हो, आना जाना शुरू हो जाता है, खाना पीना शुरू हो जाता है, रिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है, एंगेजमेंट के बाद एक दूसरे को रिंग पहनाना शुरू कर देते हैं और रिश्ता होने से पहले, शादी होने से पहले पहले दोनों के अंदर अनबन होती है, रिश्ता टूट जाता है। अब वो लड़की जिंदगी भर के लिए घर में बैठ जाती है, बमुश्किल तमाम फिर किसी के साथ रिश्ता होता है। आप जानती हैं ये सारे वो खराफात हैं जिस पर इस्लाम ने पहले से पहरा बिठा दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, इस्लाम ये चाहता है औरत बाइज्जत और बावकार बनकर अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारे और उसे दुनिया में भी सुरखरुई मिले, कब्र में भी सुरखरुई मिले और मैदान महशर में भी सुरखरुई मिले। इसलिए हमेशा इन बेहयाइयों से अपने आप को रोके रखें। और मेरी माओं से गुजारिश है, बहुत सारी माएं आज इस इज्तिमा में हाजिर हैं। मैं अपना अमेरिका का एक वाकया बताऊं। पहली मर्तबा जब मैं गया था, जब न्यू जर्सी से शिकागो में प्रोग्राम के लिए जा रहा था तो मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी। मेरे दोस्त सुबह मुझे जगाने के लिए आए, मैं बेदार हुआ तो मैंने देखा कि उनके पूरे घर की बत्तियां जल रही हैं, दालान की बत्ती जल रही है और तकरीबन कमरों की और सब बत्तियां जल रही हैं। तो मुझे हैरत हुई कि शायद मेरी वजह से आज इनको जल्दी उठना पड़ा होगा और तकलीफ हो गई। मैंने उनसे कहा, मास्टर साहब मेरी वजह से आज सारे घर वालों को तकलीफ हुई। बरजस्ता उन्होंने कहा कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, मेरे यहां बच्चे बच्चे फज्र की नमाज के पाबंद हैं और ये सारे बच्चे मेरे बेदार हो चुके हैं, नमाज का वक्त हो चुका है। मुझे हैरत हुई, अमेरिका में रहते हुए इस तरीके से नमाज की पाबंदी, अलग सबा इस तरीके से बेदार होना, मुझे वाकई चौंका दी इस चीज ने। उसके बाद नाश्ते पर बैठे तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा ये बताइए कि आपके बच्चे अमेरिका में रहते हुए इस तरह से नमाज के पाबंद कैसे बने। उन्होंने जवाब में मुझसे कहा कि मेरी जॉब यहां लगी थी, ये 96 का वाकया मैं आपको बता रहा हूं। मेरी जॉब यहां लगी थी, कुछ दिन मैं अकेला रहा, बीवी बच्चों को कभी जुदाई का इत्तेफाक नहीं हुआ था और मैं भी कभी अपने बीवी बच्चों से जुदा न हुआ था, लेकिन दौलत और तरक्की के शौक ने मुझे यहां आने पर मजबूर किया और मैं यहां रहने लगा। चंद महीनों के बाद मेरी बीवी ने इसरार किया कि आप कुछ भी करें हमें अमेरिका बुलाएं। मैं अमेरिका के माहौल से वाकिफ था, बल्कि उनका जुमला मुझे आज भी याद है। वो कहते हैं कि सबसे शॉर्टकट जहन्नम का रास्ता अमेरिका से है। तो उन्होंने कहा यहां बुराइयां बुराइयां नहीं समझी जाती, बच्चियों की आबरू महफूज नहीं। तो मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं अपनी बच्ची और बीवी को यहां कैसे बुलाऊं, कहीं खुदा न खास्ता यहां के माहौल का असर हो गया तो क्या होगा। मैं इस डर से अपने बीवी बच्चों को समझाता रहा, बुला लूंगा बुला लूंगा बुला लूंगा, लेकिन अंदर से तड़प थी कि वो आ जाएं तो कम से कम मुझे भी सुकून हो। उसके बाद कहने लगे कि मैंने कुरान शरीफ की तिलावत जिसका मैं पाबंद था,
میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک ایک آیت میں نے پڑھی جس کا ترجمہ میں نے پڑھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کو جیسے ہی میں نے پڑھا، گویا میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ بیوی بچوں کو بلانے کے لیے ایک آسان سی ترکیب مجھے مل گئی۔ انہوں نے رات کو اپنی بیوی کو فون کیا اور پوچھا کیا تم لوگوں کی خواہش ہے امریکہ آنے کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ایک کنڈیشن ہے، 6 مہینے تک تم لوگوں کی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہو، اس طریقے سے تم 6 مہینے تک پابندی سے اگر نماز پڑھو گی تو میں تم کو امریکہ بلا لوں گا۔ بچیوں نے، بیوی نے، سب نے پابندی شروع کر دی اور 6 مہینے تک پابندی کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد اطلاع بھجوائی کہ ہم بالکل نماز کے پنکچوئل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پھر ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اس کے بعد ان کی بیوی بچوں کو ویزا مل گیا، اور پھر وہ بیوی بچے جو ہے وہ امریکہ پہنچے۔ یہ بات انہوں نے مجھے تفصیل سے بتائی۔ اس کے بعد فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا، میں نے کہا اب چلتے ہیں ایئرپورٹ کے لیے، تو انہوں نے کہا حضرت اجازت دیں تو میری بچی کو یونیورسٹی ڈراپ کرنا ہے، اسے بھی میں ساتھ لے لوں؟ میں نے کہا لے لیجئے، کوئی بات نہیں، ساتھ میں لے لیے۔ اب گاڑی میں بیٹھے گفتگو چل رہی تھی، تو دوران گفتگو انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بچی ماشاءاللہ یونیورسٹی جا رہی ہے تو کیا وہاں بھی نماز کی پابندی کرتی ہے؟ کہا حضرت آپ اس کا بیگ کھول کر دیکھ سکتے ہیں، اس کے بیگ میں آپ کو مصلی ملے گا، وہاں بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز الحمدللہ ادا کر لیتی ہے۔ اگر مائیں اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا دیں اور بے حیائی سے روکنے کی کوشش کریں تو پھر دنیا کا کوئی بھی ماحول اور دنیا کی کوئی بھی پراگندگی ان بچیوں کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میں نے ابھی ہمارے ایک ساتھی کا نکاح جس خاتون کے ساتھ کروایا، وہ امریکہ کی ایک ریسرچ اسکالر ہے۔ آپ جانتے ہیں جب رشتہ طے ہو رہا تھا، وہ ہے ہندوستان کی رہنے والی لیکن وہاں پر 10 سال سے اور ریسرچ اسکالر ہے شکاگو کے اندر۔ انہوں نے مجھے دوران گفتگو کہا کہ حضرت میں نے زندگی میں آج تک ٹی شرٹ جینس یا شرٹ پتلون کبھی نہیں پہنا، میں آج تک الحمدللہ حجاب کے ساتھ شلوار قمیض ہی کے اندر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ ریسرچ اسکالر امریکہ کے اندر، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اسلام پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں، اور سب سے بڑی چیز اللہ سکون کی دولت عطا کرتا ہے۔ آج جو بے چینی ہے، کون سا گھر ایسا ہے جہاں بچیوں کو لے کر، بہو کو لے کر، ساس کو لے کر، بیٹی کو لے کر عورتیں پریشان نہیں؟ میں نے قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی وہ اسی پریشانی کا سولیوشن ہے۔ میرے کریم نے فرما دیا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے قانون کی پیروی کرے، دین اسلام کی پیروی کرے، اللہ اس کے دل سے خوف کو بھی نکال دے گا اور اس کو غم سے بے نیاز کر دے گا۔ اے خواتین اسلام، آج کا میرا پیغام آپ کو یہی ہے کہ آپ اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور دنیا کی کسی برائی کے اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس لیے کہ یاد رکھیں اگر دنیا بے چین ہے تو گناہوں کی وجہ سے، اس لیے کہ گناہ انسان کے چین و سکون کو ختم کر دیتا ہے اور نیکی انسان کو سکون کی دولت عطا کر دیتی ہے۔ نیکی کر کے کبھی کوئی بے چین نہیں ہوا اور گناہ کر کے کبھی کوئی مطمئن نہیں ہوا۔ آج میرا پیغام میری قوم کی بچیوں کو یہی ہے، اے میری بچیوں بیدار ہو جاؤ، اے میری بچیوں جاگ جاؤ۔ دنیا تمہیں بگاڑنے کے اوپر جد و جہد کر رہی ہے اور الیکٹرانک میڈیا، ماڈرن ٹیکنالوجی تمہاری جوانی کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں کسی اور کو نہیں دیکھنا، میری بیٹی فاطمہ کو دیکھو، اس کے نقش قدم پر چلو، دنیا میں بھی سکون سے رہو گی، آخرت میں بھی۔ ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ موریشس کی سرزمین پر میرے پاس ایک نیا کپل آیا اور آ کر کے انہوں نے گزارش کی، حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری زندگی پرسکون گزرے، اطمینان کے ساتھ گزرے، دونوں میں محبت بھی رہے اور دونوں میں کبھی اختلاف نہ ہو۔ میں نے سنا اور سننے کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ صرف دعا کر دوں، پھر یہ خیال آیا کہ نہیں ایک جامع نصیحت کر دوں۔ وہ نصیحت آج کے اجتماع کی جان ہے جسے غور سے سماعت فرمائیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کیا آپ لوگ
पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आप ये चाहते हो कि कभी आपके दरमियान इख्तिलाफ ना हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या आप ये चाहते हो कि आपकी दोनों की जिंदगी बहुत सुकून के साथ गुजरे? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा बस उसके लिए एक नुस्खा अता करता हूं, और वो नुस्खा ये है कि हस्बैंड वाइफ को अपनी मैरिज लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, उसके लिए न किसी सीरियल को फॉलो करें, न किसी पिक्चर को फॉलो करें कि पिक्चर में हीरो हीरोइन और सीरियल में किस तरीके से वो लोग अपनी मैरिज लाइफ गुजारते हैं, उसे फॉलो न करें। हजरत मौला अली और खातून जन्नत कैसे जिंदगी गुजारते थे, बस उस तरीके की जिंदगी गुजारने के लिए उनके नक्शे कदम पर चलो, तुम्हारी जिंदगी में कभी खिजा नहीं, हमेशा बाहर ही बाहर रहेगी। तो आज जरूरत इस अम्र की है कि उन लोगों की इज़्दिवाजी जिंदगी पढ़ो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मुमिनीन की इज़्दिवाजी जिंदगी पढ़ो, मौला अली और खातून जन्नत की इज़्दिवाजी जिंदगी पढ़ो और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। दुनिया में भी पुरसुकून, कब्र में भी पुरसुकून और मैदान महशर में भी पुरसुकून रहोगी।